A sample is a subset of the population. A sample is a सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का एक पार्ट जो होता है उसे हम सैंपल बोलेंगे। पॉपुलेशन बहुत बड़ा होता है, उसमें से कुछ पार्ट हमने कलेक्ट किया तो उसे हम बोलेंगे सैंपल। तो उसी को बोलते हैं सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का एक पार्ट। तो बोलेंगे अ सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। In other word, in other word, in other word, a part of population is called sample. A part of population is called sample. Full stop. फुल स्टॉप के बाद लिखना इट इज क्वाइट ऑफन a part of population. यानी सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। इट इज क्वाइट ऑफन it is quite often used it is quite often used to draw interface it is quite often used to draw inference. It is quite often used to draw inferences about the population. It is quite often used to draw inferences about the population. Full stop. Some example of population samples are लिखना some examples of samples are एक एग्जांपल लिखो द स्टूडेंट ऑफ बी फार्मेसी 4th ईयर द स्टूडेंट्स ऑफ बी फार्मेसी 4th ईयर the students of B Pharmacy 4th year the students of B Pharmacy 4th year is the sample of is called the sample the students of B Pharmacy 4th year is called the sample it's called the sample if all the students of if all the students of B Pharmacy as a population
B pharmacy 4th year students is called a sample if all the students of B pharmacy as a population. अगर बी फार्मेसी के सारे स्टूडेंट्स एज अ पॉपुलेशन हैं तो उसका एक पार्ट जो बी फार्मेसी 4th ईयर है वो एज अ सैंपल बोला जाएगा. सेकेंड पॉइंट लिखना. सेकेंड लिखना एग्जांपल सैंपल का. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस wants to find out Delhi traffic police wants to find out population emission. Delhi traffic police wants to find out population emission find out हाँ जी. find out Delhi traffic police wants to find out population emission EMISSION population emission from trucks entering Delhi, from trucks entering Delhi. A sample of 150 trucks, a sample of 150 trucks may be taken for this purpose. A sample of 150 trucks may be taken for this purpose. दो पॉइंट होगा इसके एग्जांपल. यानी कोई भी अगर पॉपुलेशन है तो उसका कुछ पार्ट उठा लिया तो उसे सैंपल बोल देंगे. एक पॉइंट और लिख लो इसमें. The head examiner, third point, the head examiner of a paper may check some answer sheets from all the answers. The head examiner of a paper may check some answer sheets from all the answer sheets. The head examiner of a paper may check some answer sheets from all the answer sheets examined by an examiner to ascertain whether
to ascertain whether instructions for evaluations have been observed or not. Have been observed or not. यानी क्या बोला मैंने? A head examiner of paper may check some answer sheets from all answer sheets examined by an examiner to ascertain whether instructions for evaluations have been observed or not. यहां पर क्या हुआ? यहां टोटल आंसर शीट जो है यानी ऑल आंसर शीट्स एज अ पॉपुलेशन वर्क करेंगे और जो उसमें से सम आंसर शीट जो उसने सेलेक्ट कर लिया रीचेक करने के लिए उसे हम क्या बोलेंगे? वो सैंपल हो गया। तो सैंपल जो होता है जो भी पॉपुलेशन लेते हैं उसका एक पार्ट। फुल स्टॉप हो गया। अब क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैंपल। लिखना नीचे पैराग्राफ छोड़ के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैंपल, large sample and small sample. फर्स्ट है लार्ज सैंपल, सेकेंड है स्मॉल सैंपल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैंपल, लार्ज सैंपल एंड स्मॉल सैंपल। लिख लिया भैया? Yes, yes. There are two types of sample, large sample and small sample. Large sample में लिखना if number of elements or observations, number of elements or observations if क्या कहा मैंने? The number of elements or observations is greater than 30 is called large sample। यानी n is greater than 30 ये होता है लार्ज सैंपल। यानी जो सैंपल है n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आइटम्स, ऑब्जर्वेशंस एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। अगर n ग्रेटर देन 30 है यानी 30 से ज्यादा आपने सैंपल अगर लिया है पॉपुलेशन में से तो उसे हम लार्ज सैंपल बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट में इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 30 इसको बोलेंगे स्मॉल सैंपल। अगर आपने सैंपल जो लिया है यानी यहां भी n जो है वो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, आइटम्स है या ऑब्जर्वेशन है एटसेट्रा। अगर 30 से कम लिया आपने जो सेलेक्ट किया उसके अंदर से तो उसको बोलते हैं स्मॉल सैंपल। अगर 30 से ज्यादा लिया है तो लार्ज सैंपल बोलते हैं। लिख लिया यहां तक? तो हटाओ पहले।
हाथ हटाओ। हेलो, यानी अभी तक हमने पॉपुलेशन पढ़ा। जब भी हम किसी चीज के ऊपर रिसर्च करने जाते हैं तो जिस चीज पे, जिस प्रोडक्ट है, जिस आइटम्स है, जो एलिमेंट्स है, या जो भी चीज है जिसके ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं, वो सारे क्या बोले जाएंगे? पॉपुलेशन। अब रिसर्च करने के लिए जो हमने उसका एक पार्ट सेलेक्ट किया वो हमारा होगा सैंपल। पॉपुलेशन भी लार्ज होता है और पॉपुलेशन भी दो टाइप का होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल पॉपुलेशन भी होता है, अनकाउंटेबल पॉपुलेशन भी होता है। फिर अब आते हैं सैंपल पे। पॉपुलेशन का एक पार्ट कलेक्ट करते हैं, उसे हम सैंपल बोलते हैं, जिसको हम रिसर्च करने के लिए जो पार्ट उसका हम सेलेक्ट करते हैं। अगर वो 30 से कम है, ये 30 या 30 से कम है तो उसे स्मॉल सैंपल बोलेंगे। अगर 30 या 30 से ज्यादा है तो लार्ज सैंपल बोलेंगे। अब आती है बात हाइपोथेसिस की। हेडिंग डालिए हाइपोथेसिस।